हेलो एवरीवन। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विशाल शर्मा with a 17 year of experience in a Gurgaon real estate market. He worked with a developer like DLF, Imar, SS, M3M, Conscient, and he's currently working with Ganga Realty from last 2 years as a head of sales. आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे about Gurgaon real estate market, about Ganga Realty, the new launch of Ganga Fusion 85, how to earn good appreciation in your property, and the future of Gurgaon real estate market. So मिलते हैं आपसे इस पॉडकास्ट में। Hello Vishal ji, welcome to Greg Yan. How are you, sir? Hi Abhishek, I'm good. How about you? I'm good too. Thank you so much for coming, sir. Thank Sir, you. can you tell a little bit about Ganga Realty, how it started, what the background of Ganga Realty? So we started in 2022 Ganga Okay. Realty, and as you know, we are into real estate development, and we always wanted to come up with the luxury segment, Okay, that's great. right? So in 2022, I have been approached by Ganga Realty management and all. They wanted to, come up into the reality sector with the luxury development only. Okay. So they called me for an interview when we were sitting just like that with the management, Neeraj sir and Vikas sir. Mm-hmm. They told me, Vishal, that the lot of developments are happening in market right now, and every developer is always talk about the luxury. Because जब हम DLF की बात करते हैं, so Correct, when we talk about the Godrej or MR or other developers, they always talk about the luxury, right? And they told me, Vishal, we just want to include life in with the luxury. Oh. So I really like the idea. Mm-hmm. So they told me, Vishal, this is how we are going to plan, and this is what we are going to keep it within the development, and luxury will come with the life. So Correct. they told me our logo is also life is pure. Mm-hmm. So when he says, मैंने कहा life is pure, तो थोड़ा सा different सा है, बहुत अजीब सा है. तो बोले विशाल, the time we start with the development, I can assure you one thing, the life is pure is going to be your first tagline. Okay. तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है आफ्टर वर्किंग 2 years अप्रोक्सीमेट विद द गंगा रियलिटी कि जब भी हम लोग बैठते हैं आप लोगों के साथ में, और शुरुआत हमारी जो होती है, लग्जरी वर्ड जो है वो बाद में आता है, पर लाइफ के बारे में हम लोग पहले शुरुआत करते हैं. तो ये गंगा रियलिटी में आफ्टर वर्किंग 17 years विद डिफरेंट डेवलपर्स, दिस इज द ओनली डेवलपर आई हैव फाउंड विच इज एक्चुअली ट्रीटिंग यू एज ए ह्यूमन, फाइन. और आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपकी रिलेशनशिप, वेदर इट्स ए सोशल रिलेशनशिप और आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, उसमें जो लाइफ के एक्सपेक्ट हम लोग काफ़ी सारे जो मिस कर जाते हैं. सो हम लोगों की जितनी भी डेवलपमेंट आज हम लोगों ने प्लान की है या नियर फ्यूचर में वी आर प्लानिंग, तो उसमें लाइफ को और लग्जरी को हम लोग मिक्स करके लेकर के आ रहे हैं. आपने अभी एक टैगलाइन कहा, लाइफ इज प्योर. मुझे ना एक हिंदी की मुहावरा याद आ गई इस बात पे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा. कटौती में गंगा जी. अब ये मन चंगा कटौती में गंगा का तात्पर्य ये होता है कि आपका मन साफ होना चाहिए, तो कटौती में रखा जो जल भी है वो गंगा के समान है, आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं है जी. क्या इस मुहावरे को मैं गंगा रियलिटी से कैसे जोड़ सकता हूँ, या बहुत अलग है ये? सर देखो, बिकॉज इट्स जस्ट 2 years विद गंगा रियलिटी, राइट. और आज मैं we are about to launch second product in Sector 85 with the name of Fusion 85. We are expecting RERA by the weekend itself. तो जो लाइफ इज प्योर की जो टैगलाइन है जो हम लोगों ने यूज की है, उसके लिए हम लोग जो बात करते हैं कि लग्जरी आ रही है और डेवलपमेंट जो है इस तरीके से हो रही है कि कंक्रीट का जंगल आपको हर जगह नजर आने लगा है, और इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ डिसेंट मनी यू आर नॉट गेटिंग द 100% सेटिस्फेक्शन. सो वन और दी अदर एक्सपेक्ट जो है लाइफ का या हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट का, वो किसी ना किसी डेवलपमेंट में मिस आउट हो जाता है. अगर जो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के एक नई डेवलपमेंट करता हूँ जहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स के लिए कुछ है, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के लिए कुछ है, आपके बच्चों के लिए कुछ है, आपके कजन्स के लिए कुछ है, आपके बिजनेस फ्रेंड्स के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर है, और बेस्ट पार्ट में आपको फिर एक ऐसी जगह ले आता हूँ जहाँ पे आप सबके लिए कुछ ना कुछ है. करेक्ट. तो आप वापस लाइफ को दोबारा से जीना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो जब लाइफ उस तरीके से हंसते हुए नजर आती है पूरे प्रोजेक्ट में, हर तरफ लोग खुश हैं, तो आपको यही लगने लगता है हाँ लाइफ की कुछ वैल्यू तो है. कुछ डेवलपर्स की लाइफ में और या उनके जो विजन है उनका जो है वो लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, फ्रीडम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, प्लेजर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और उसके लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे हैं उसके लिए उनके पास में वो माइंड भी है जो उसको एक्सपेरिमेंट को आगे जा करके एक तरीके से
क्या कहते हैं उसको, डिलीवर भी करेगा। तो मुझे लगा गंगा रियलिटी के अंदर लाइफ को लेकर के ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, और लोगों को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना, लोगों को प्रॉपरली ग्रीट करना, उनके हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से उनको इम्यूनिटीज देना प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारे ही क्वालिटी हैं गंगा रियलिटी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में, या जो हमने पुराने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे नंद का हम लोगों ने लॉन्च किया सेक्टर 84 में। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके लाइफ इज प्योर को रखा गया है और आगे भी बढ़ रहे हैं उसी के साथ। करेक्ट। एज ए डेवलपर, जैसे एज ए कस्टमर लोग बहुत चैलेंज फेस करते हैं, एज अ कंसल्टेंट लोग बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं रियल एस्टेट में। एज ए डेवलपर आप किन चैलेंजों को फेस करते हैं और उससे ओवरकम कैसे करते हैं? देखिए, क्वेश्चन तो ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और अब हम ऑन कैमरा भी हैं तो बताना भी जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो ऑन कैमरा नहीं होते तो इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, ठीक है। पर एज ए बीइंग ए न्यू डेवलपर चैलेंजेस काफी आते हैं। ट्रस्ट को बिल्ड करना इट्स नॉट दैट इजी टास्क। जहां हम लोग लेगेसी हमारे पास में नहीं है, ठीक है, वहां पे लेगेसी के साथ में जो डेवलपर हैं उन लोगों से compete करना इट्स नॉट दैट इजी। बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, जब आप बात करते हो लेगेसी नहीं होना, पर लेगेसी क्रिएट भी आप तभी कर सकते हो जब नहीं है, ठीक है। तो एक सेम टाइम पे जहां हम लोगों को थ्रेट लगती है, वहीं पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है, और उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए हम लोग करते हैं मार्केट से जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने इस तरीके के पास में डेवलपमेंट किया हुआ है या इस तरीके का लोगों ने काम किया हुआ है, उन लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आना, उनकी एक बढ़िया टीम बनाना, और फिर उस टीम से वो सब चीजें अचीव करना जैसे एक लेगेसी बने और लेगेसी पॉजिटिव बने। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर गंगा रियलिटी आज चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए आसान रहा है, हम लोगों के लिए मुश्किल रहा है, पर मैनेजमेंट का जो क्लियर माइंडसेट रहा है हम लोगों को, या सपोर्ट जिस तरीके से मैनेजमेंट ने किया है कि जहां जहां हम लोगों को एक अच्छे माइंड की जरूरत थी, उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड को मार्केट से लेकर के गंगा रियलिटी का पार्ट बनाया है, और उस जिस तरीके से उस माइंड को वो नर्चर कर रहे हैं, I can assure you one thing, another couple of years you will see Ganga Realty as a wonderful and responsible developer in market. वाओ, ग्रेट। नहीं, देखो, लेगेसी और ब्रांड नेम तो आपने बना लिया है। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट गंगानंद का जी, एक प्रोजेक्ट आता है, एक नया डेवलपर आता है, अपनी पहली प्रोजेक्ट लेके आता है, और प्रोजेक्ट 70% सोल्ड आउट हो जाता है 7 दिनों में। कुछ तो अलग किया होगा आपने, तो लेगेसी तो बना लिया है मुझे लगता है। ये कैसे आप कर पाए, मतलब कि एक प्रोजेक्ट लाके आप 70% कैसे माल बेच पाते हो 7 दिनों में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज लेगेसी को, हम सबका एक अलग कॉन्सेप्ट है देखने का। बिल्कुल। मैं ही चाहता हूं कि हमारी एक डेवलपमेंट, जो मैनेजमेंट भी ये चाहती है कि हम 4.5 ईयर से 5 ईयर में हम अपना ये नंद का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 का, जिसमें ऑलरेडी 70% सोल्ड आउट है, एज पर कंपनी हम लोगों की यही प्लानिंग है कि विद इन 5 ईयर्स हम लोग इसको हैंड ओवर करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो हमारी एक्चुअल में लेगेसी जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स आपको नजर आएगी। और जो पॉजिटिव ब्रांडिंग हम लोग मार्केट में कर रहे हैं, जो आपने हर जगह देखा होगा कि गंगा रियलिटी जो है, गंगा इज वन और दी अदर वे, ठीक है, हम लोग प्रेजेंस अपनी बनाए रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को ये रहे कि यहाँ एक डेवलपर गंगा रियलिटी भी है जो उनके लिए एक रीजनेबल प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, और एक लाइफ की जो मस्ट रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो प्रोजेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। करेक्ट। तो हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लेगेसी भी पॉजिटिव रहे हम लोगों की। और जो डेवलपमेंट अब आने वाली है नंद का, जिसको आप बोल रहे हो 70% सोल्ड आउट है, 70% सोल्ड आउट इज नॉट द अचीवमेंट। ओके, ठीक है, तो अचीवमेंट क्या है फिर? अचीवमेंट है वो प्रोडक्ट जिसको डिजाइन करने में हम लोगों को करीबन 1 साल लगा। ठीक है, काफी लोगों से हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप जैसे बहुत सारे हम लोगों के फ्रेंड्स से प्रोफेशनल, जिन लोगों ने हमें बताया कि आज जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या एक फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, या एक बिजनेस कल्चर में जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के क्लाइंट को हम लोग कैटर करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप लोगों की तरफ से हम लोगों को वो राइट इनपुट्स आए, तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया उसके ऊपर वर्किंग करना। हमारा 50% तो थैंक्स टू यू पीपल, थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, और हम लोग एक इजीली हमारा 50% काम तो आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, और 50% जो था, जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, एक माइंडसेट था उनका, एक फ्रीडम थी उनकी थिंकिंग के अंदर, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच रही उनकी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है ना, अचीवमेंट वो है। करेक्ट। 8.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर जिस तरीके की डेवलपमेंट हम लोगों ने प्लान किया नंदगा की,
बहुत सारी डेवलपमेंट मैंने देखी हैं। आई वर्क विद DLF आल्सो, M3M में रहा हूँ मैं, MR में मैं रहा हूँ, ठीक है, कॉन्शियन में आई स्टेड फॉर अ डिसेंट पीरियड। इस तरीके की डेवलपमेंट मैंने पास्ट में नहीं देखी है, जबकि मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट किए हैं। Correct. मैंने हेरिटेज मैक्स किया, इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। DLF में मैंने बहुत सारे और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, और बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। या MR में मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। मार्बेला, आई रियली लाइक मार्बेला ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। पर नंदका इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट। ये लग्जरी भी है और इसमें ह्यूमन टच भी है, और जो बार बार लाइफ इज प्योर की हम लोग बात कुछ करते हैं, डिफरेंट है तभी लोगों को पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा है जी, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज है ना सोच करके बनाई गई है। उसके छोटे एरिया को भी इस तरीके से ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि सिर्फ 8.5 एकड़ में हम लोग 302 अपार्टमेंट्स के साथ में आ रहे हैं। और हार्ड टू सीन 2 ए कोर डेवलपमेंट अभी जो मार्केट में नहीं है, जहाँ लोग 4 ए कोर और 6 ए कोर के अंदर जा रहे हैं। दिस इज अ 2 ए कोर डेवलपमेंट। हम खुद लोग में एक लग्जरी फील देती है, खुद में लग्जरी फील देता है जी आपको, ठीक है। और प्राइवेट लिफ्ट लॉबी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्लब को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बिजनेस क्लब है, जो मैंने बोला आपको कि जिस तरीके के क्लाइंट हम लोगों के पास में आने वाले हैं, उनकी लाइफ का एक अलग कॉन्सेप्ट है उनका। सो देयर आर सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम द सर्विस बैकग्राउंड, बट दे ऑलरेडी अचीव्ड डिसेंट पोजीशन in their working area basically. So they would need some kind of co-working area, they need the meeting room, they would need concierge services also, they would need the valet parking also, and then private lift lobby again. Correct. It's a plus point for the product. And then we are just going up to 45 story. तो जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज अराउंड 22 to 25 फ्लोर्स मैक्सिमम, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन आइकॉनिक टावर्स। सिर्फ 4 टावर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं विद 2 ए कोर कॉन्सेप्ट, कि जब आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स न्यू गुरुग्राम फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, यू विल बी एबल टू सी द 4 टावर्स। करेक्ट, ठीक है। तो उस तरीके का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे हम लोग, और माइंड यही है कि किसी भी तरीके से, ठीक है, जो भी हम लोगों को करना पड़े, इस डेवलपमेंट को उस लेवल पे लेकर के जाना है कि व्हेनेवर समबडी टॉक अबाउट अस, दे ऑलवेज सेइंग नंदका इज द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू गंगा रियलिटी। करेक्ट। व्हाट आर द की फैक्टर कस्टमर इज लुकिंग व्हेन ही और शी इज प्लानिंग टू बाय अ रेजिडेंशियल प्रोडक्ट? सर, हमारे पास में 2 तरीके के बायर इस टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं। मैं जो रेजिडेंशियल की बात करूं, सो एक तो हमारे पास में 100% प्योर इन्वेस्टर्स हैं, those who are looking to invest some money, and after a certain period of time they want to exit and want to earn the profit over it. और दूसरा हमारे पास में एक है हमारे एंड यूजर्स, जो इस टाइम पे ये देखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट पेमेंट प्लान उनको क्या मिल सकता है। करेक्ट, कि कितनी कम पेमेंट वो आज दें, उसके बाद में कितना पीरियड उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मिलेगा, क्या वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, और डिलीवरी जो होने वाली है प्रोडक्ट की, वो कितने टाइम बाद में होने वाली है, किस तरीके के बैंक इसको फंड कर रहे हैं, SBI इज देयर और नॉट, बिकॉज SBI इज ऑल्सो इट्स ए क्रिएट ए ट्रस्ट फैक्टर अमंग द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स, बायर्स एंड ऑल। तो दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अपना एक माइंडसेट है, एक अपना उनका टारगेट डेवलपर है उनका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो वो इस टाइम पे ये चाहते हैं कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो एंड यूज के लिए मार्केट में बेस्ट रहे। करेक्ट बात है। घूम फिर के, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो एंड यूजर है, अगर जो एक प्रोडक्ट एंड यूज पर्सपेक्टिव से आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा कंप्लीट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है। और अगर जो उसकी जो पेमेंट प्लान है आपके पॉकेट को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जहां पे आपको इजी पेमेंट प्लान लगता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल सही बात। और जिस तरीके के लास्ट 5 years वी हैव सीन द मार्केट टू ग्रो टू अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, वी आल्सो कीपिंग दैट राइट फॉर another couple of years. This should continue like this, not for couple of years. Even as an employee, I would love to see it for next 10 years or 15 years, that it keep growing and all that. So that's all we are keeping finger crossed, and gradually government is also coming. The third term for the NDA government, and also we are also hoping this will also bring more positive sentiments towards the market. Correct. तो ये जो सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर उन्हें राइट प्राइस के ऊपर एक राइट प्रोडक्ट जो आने वाले टाइम में एंड यूजर को अपील करेगा या उसको मोटिवेट करेगा एक डिफरेंट लेवल की प्राइसिंग को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। करेक्ट। उनका मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हाउ फास्ट माई इन्वेस्टमेंट कैन ग्रो। सही है। और बीइंग एन एंड यूजर,
I'm also an end user for one product. So I always talk about family, right? So I have a lot of cousins also. I have family, friends and all. तो अगर जो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट को पिच करना चाहूँगा अपने लिए, तो मैं ये जरूर देखूंगा कि मेरे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सोशल और मेरी प्रोफेशनल मेरी गैदरिंग है, उनके लिए उस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए अपार्टमेंट तो बहुत सारे, सभी लोग अपार्टमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हम लग्जरी दे रहे हैं। आई कैन ब्रिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ लग्जरी टू माय अपार्टमेंट। इनसाइड द अपार्टमेंट वी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट टू डू इट, राइट? बट व्हाट अबाउट द आउटसाइड माय अपार्टमेंट, व्हेन आई amenities and all that, what kind of amenities, what kinds of feature I am getting in my product. So that is the only difference which appeal to the end user. करेक्ट। तो मुझे लगता है कि नंदका और आने वाली जो डेवलपमेंट है गंगा रियलिटी की, जितनी भी डेवलपमेंट है वो हम लोग सब फोकस करके चल रहे हैं। अब जैसे नंदका में मैं बार बार बोले जा रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल, और 85 में जो हम प्रोजेक्ट लेकर के मैं भी उसी की बात कर रहा था आपसे कि आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है फ्यूजन 85 मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। एज ए डेवलपर आप करते क्या हो? मतलब नंदका आता है, सोल्ड आउट हो जाता है, फ्यूजन आया 85 मार्केट में बज़ क्रिएट कर दिया, ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है, आज गुड़गांव का ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है, हर कोई जानना चाह रहा है फ्यूजन 85 है क्या। मतलब ये कैसे कर पा रहे हो आप? और ये फ्यूजन 85 है क्या मुझे भी समझना है और व्यूवर को भी समझना है कि ये है क्या, मतलब ये अलग कैसे है और प्रोजेक्ट है, क्या यूएसपी इस प्रोजेक्ट की? सर देखिए, नंदका में जो फीचर्स हमने रखे थे, दैट वाज द ओनली रीजन वी सोल्ड 70% स्टॉक फॉर दैट। हम लोगों ने प्लस करके उसको फ्यूजन में लेकर के आए हैं। ओके, क्या प्लस किया? प्लस हमने एक तो एआई कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम लोग बात करते हैं। अच्छा। आजकल हम लोग अच्छे से ये बात जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो लाइफ के साथ में बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, और हर एवरी 6 months यू विल सी द लॉट ऑफ डेवलपमेंट आर कमिंग इन टेक्नोलॉजी, जो आपकी लाइफ को ईजी करते जा रहे हैं। चाहे वो सेल्फ ड्रिवन कार की हम लोग बात करें, ठीक है, या आज डिश वॉशर की हम लोग बात करें, काफी तेजी से जो है मार्केट के अंदर जो है, या एक तरह कंज्यूमर के बीच में फेमस होते जा रहे हैं। ये कर क्या रहे, सिर्फ लाइफ तो ईजी कर रहे हैं ना आपकी। तो जो एआई के कॉन्सेप्ट के हम लोग लेकर के आ रहे हैं फ्यूजन 85, उसमें हम लोगों ने क्लब हाउस भी दिया है, ठीक है, जो मोस्टली सभी लोग एक ऑफर करते हैं, हाँ। ठीक है, हमने उसमें बिजनेस सेंटर भी दिया है आपको, अदर देन द क्लब हाउस, ठीक है। सो एवरी 13th फ्लोर एंड 49th फ्लोर हम लोग एक बिजनेस क्लब बना रहे हैं वहां पर। सो देयर विल बी ए कोवर्किंग स्पेस, देयर विल बी मीटिंग रूम, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस रूम, एंड देयर विल बी मेल डेस्क आल्सो। सो व्हाटएवर द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट यू वांट टू मीट, that will be available on every tower at 13th floor and 49th floor. And और जो इसका अलग यूएसपी बात कर रहे हैं, this is going to be tallest tower in Gurugram. So we are touching 60 floors with a height of 210 meters. तो ऐसा नहीं है कि नंदका ही हमारा लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा। फ्यूजन 85 is also going to be another landmark. It will create a landmark. It will, for sure. It will create a landmark. So there are multiple factors will definitely play in favor of the product. One, going up to 60 floors. Then we have a private lift lobby concept, जो आजकल काफी इन है मार्केट के अंदर. People are treating luxury when they have the lift opening within the apartments. So same concept in Nandka and same concept in Fusion. तो हमारी जो 2 लिफ्ट हैं, they are opening middle of the apartment. ठीक है, inside the apartment, not in the middle of the apartment. So ये भी एक लग्जरी का फैक्टर है. 13th floor पे और 49th पे you have a business club, and then at the 60th floor we have infinity pool. So we have 2 restaurants coming up at the terrace. So and we have observation deck. This is ultra luxury, yeah? It is a ultra luxury, but with the mix of life. So we are not even missing the life here, right? तो life के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक पार्टी करनी है हम लोगों को, यार पूल पार्टी करने चलते हैं यहाँ पर, मैं, so we'll have to find a club, right? Then we have to reserve it for the full day. So even in this society that is not applicable, because you cannot reserve the standalone pool. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो every tower will have an infinity pool at the terrace, so that pool will only cater the resident and the particular tower. तो आपके लिए पूल पार्टी थ्रो करना बहुत इजी हो जाएगा। If you are making life ease. We are making life ease. प्रोजेक्ट कब आ रहा है? प्रोजेक्ट हम लोग देखिए रेरा, वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर कपल ऑफ डेज इटसेल्फ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च नेक्स्ट मंथ। जुलाई में हम लोग प्लान कर रहे हैं बिटवीन 5th to 10th, जो हम लोग अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। कैसे अलॉटमेंट मिल सकती है इस प्रोजेक्ट में, क्या प्रोसेस है?
अलॉटमेंट के लिए तो देखिए वी हैव एन एक्सपीरियंस सेंटर इन सेक्टर 84 Okay. जिसमें अभी हम लोग ऑलरेडी वी आर सेटिंग राइट. Mhm. So my request to all clients, to all viewers and all that, they can visit the site, they can understand the project well. ठीक है. आज हमारे पास में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज बिफोर रेरा वी डोंट वांट टू सर्कुलेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल सही और बात है. जो भी एज ए सेल्स पर्सन हम लोगों को मार्केट से या हम लोगों को मैनेजमेंट से पता लगता है वी आर रेडी टू शेयर मार्केटिंग टूल्स. marketing tools and all that. तो जो भी हमारे पास में ब्रीफिंग है वी कैन गिव इफ Okay. somebody is interested, वो हमारे साथ में बैठ सकते हैं, अपने डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सो whenever the RERA is coming, we'll definitely get back to these people. ठीक है, ठीक. अब रेसिडेंशियल मार्केट काफी बूम कर रहा है. जी. कोई भी डेवलपर, नॉट गंगा, मतलब अभी कोई भी डेवलपर, मैं भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट कोई भी डेवलपर कुछ चीज़ें लॉन्च करता है, 400-500 अपार्टमेंट लेके आता है, वो 4 से 5 दिन में सोल्ड आउट हो जाता है. ऐसा क्या हो रहा है गुड़गांव के मार्केट में कि कोई भी अपार्टमेंट आता है और इतनी जल्दी बिक जाता है? मतलब क्या फैक्टर बूम कर रहा है इस मार्केट को? क्यों ये मार्केट इतनी बूमिंग हो रही है? सर देखो लास्ट 4 ईयर से हम दोनों ने काफी डेवलपमेंट देखी है मार्केट के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब और इतना एग्रेसिव है इस टाइम पे मार्केट. बहुत एग्रेसिव मार्केट है ठीक है. अभी. चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो एंड यूजर्स हैं, और जिस तरीके से सेंटिमेंट्स मार्केट के भी चल रहे हैं, वी हैव सीन द सेंसेक्स आल्सो ग्रोइंग एवरी सिंगल डे. करेक्ट बात है. ठीक है. तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं. और जिस तरीके से एमएनसीज आर कमिंग इनटू इंडिया, और जिस तरीके की एफडीआई डेवलपमेंट हम लोग अब देख रहे हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने गुरुग्राम में देखा है लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, जब से द्वारका एक्सप्रेस वे हम लोगों ने देखा है, और मल्टीपल सेक्टर रोड्स या लिंक रोड जिस तरीके से डेवलप हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पॉजिटिव हुआ है बायर के लिए, चाहे वो एंड यूजर के लिए हो. और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है चीज़ों को. अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से बाहर की एफडीआई आ रही है, तो वी आर श्योर कि आने वाले टाइम पे जितने भी कमर्शियल्स यहाँ पर बन रहे हैं, जो भी आईटी पार्क इस टाइम पे फ्यूचर में डिसाइडेड हो गए हैं, ठीक है, उनके अंदर अच्छी से अच्छी कंपनीज भी आने वाली हैं. वहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी बहुत बढ़िया होंगे. करेक्ट बात. तो आज के टाइम पे हर बंदा यही चाहता है कि बिफोर इट गेट्स टू लेट, रादर स्टेइंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, बेटर बाय टुडे वन. ठीक है. ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर जो भी अप्रिसिएशन उनको मिलना है, एक तो वो अप्रिसिएशन मिल जाए. और जिस तरीके की डेवलपमेंट आज आने लगी है, क्योंकि फैमिलीज भी काफी तेजी से बड़ी हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ में जो इंडियन कल्चर है वो बहुत तेजी से जा रहा है. दिल्ली के काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो वहां से निकल करके आ रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर सर्विसेज आल्सो, बेटर एमिनिटीज आल्सो. दे आर स्टेइंग इन अ बंगलो बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एमिनिटीज, या उस तरीके की सर्विसेज नहीं मिल रही हैं. सिक्योरिटी की भी बात करें तो आज जो इस तरीके से कॉन्डोज में आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी फील होती है, वो आपको सॉरी किस तरह की फीचर्स और एमिनिटीज डिमांड में है? मतलब एमिनिटीज की बात कर रहे हैं तो कौन सा फीचर्स और कौन सा एमिनिटी जो है वो डिमांड पे है? मतलब कस्टमर को ये चाहिए होता है बेसिक. मैंने इतने 1 या 1.5 साल में सबसे पहले, आज भी बेसिक चीज ग्रीनरी सबसे पहले डिमांड में आती है. ठीक है. बहुत से लोग बोलते हैं क्लब कितना बड़ा होगा. क्लब पूछने के बाद में भी एक एक्स फैक्टर जो होता है वो ग्रीन होता है. ग्रीनरी गुड़गांव में ग्रीनरी जो है वो बहुत मिसिंग है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन वी हैव सीन, राइट. तो पीपल आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट द पॉल्यूशंस एंड द एयर दे आर टेकिंग. तो उस वजह से देखा जाए तो ग्रीनरी एक एक्स फैक्टर है. Okay. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ग्रीनरी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है. ओके. क्लब हाउस आप बहुत मैसिव बना सकते हो. पीपल ऑल्सो टॉक अबाउट द क्लब हाउस कि क्लब में क्या क्या एमिनिटीज होगी. और 1.5 ईयर में जब भी मुझसे किसी ने क्लब के बारे में पूछा, मैं कि सर जो आप चाहते हो वो सब क्लब में होता है. क्लब हाउस से मिलेगा. वो चाहे हमारा प्रोडक्ट है चाहे वो किसी और का प्रोडक्ट है, एवरी सिंगल थिंग एवरी डेवलपर इज प्रोवाइडिंग यू. तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है. पर जब बात आती है ग्रीनरी ना होने की, तो आप कोई भी एमिनिटीज क्लब में डाल लीजिए, ठीक है, क्लाइंट ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ में इंक्लाइन हो जाता है जहां पर उसको बेटर ग्रीनरी नजर आती है. तो ग्रीनरी ओपन स्पेस मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर प्ले करते हैं, एंड दे विल कीप डूइंग इट वेदर विल गो 60 फ्लोर वेदर वी गो 90 फ्लोर एंड ऑल. ठीक है. उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है. मैंने कहा ना, लाइफ में हम लोगों के लिए ना ये क्लब हाउस जो है ना वो कुछ टाइम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर ग्रीनरी इज फॉर लाइफ. ठीक है. ग्रीनरी इज फॉर लाइफ, ओपन एरिया इज फॉर ऑल टाइम, राइट. तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा एक तो मेजर रोल प्ले करते हैं. सेकंड, इस टाइम पे एक अच्छा अपार्टमेंट साइज अपार्टमेंट का जो है वो बहुत मैटर करने लग रहा है. बहुत सारे क्लाइंट ये बात करते हैं फॉर द 3 बेडरूम 2000 स्क्वायर फीट इज नॉट सफिशिएंट.
because they are looking for a bigger apartment also, they are looking for a bigger room, bigger living area, bigger dining area. और आज के टाइम पे किचन को लेकर के भी काफी सारी पर्टिकुलर डिमांड्स आने लगी हैं बिल्कुल सही बात है। कि द लॉट ऑफ पीपल लव टू कुक टुगेदर एज ए कपल, तो उन लोगों को लगता है कि बैक टू बैक देयर शुड बी ए स्पेस दैट पीपल कैन एक्चुअली, हस्बैंड एंड वाइफ कैन टुगेदर वर्क इन द सेम टाइम इन द किचन ऑल्सो। तो वो एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलपमेंट में आया है, ठीक है। और बालकनी में हम लोग बात करते हैं तो बालकनी, लॉन्ग रनिंग बालकनी के साथ में उनको डेक एरिया भी जो है वो एक रिक्वायरमेंट में आया है। और आज उनको वो लग्जरी नहीं लग रहा है, वो कहते हैं ये बेसिक है, ये बेसिक है। हाँ, जो जो अपने डेक Fusion एरिया वो 85 में बेसिक शायद है। आपने वो लग्जरी वो आप लेके आ रहे हो डेक जी एरिया। बिल्कुल, जहाँ 2015 में लोग एसी के बारे में बात करते थे, आज कोई एसी के बारे में पूछता भी नहीं है, हाँ, वो बेसिक है, क्योंकि बेसिक है। उनको पता है कि आज ये मिलना ही मिलना है, ही मिलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनको पता है विद इन 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज दे कैन गेट इट इंस्टॉल्ड एनी ब्रांड बेसिकली। पर क्या वो बालकनी में डेक एरिया परचेज के बाद में बना पाएंगे? वो नहीं बना पाएंगे। तो आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर है, जो एंड यूजर है, वो भी इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो जब अपार्टमेंट की बात करने आता है तो वो अपार्टमेंट में पहले ही अपना ड्रीम लेकर के बैठा हुआ है कि मेरे को बालकनी मिलेगी तो मैं डेक एरिया को इस तरीके से डिजाइन करूंगा, मुझे किचन मिलेगा तो मैं किचन को इस तरीके से डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो अब अगर जो हम वहां पर वो स्पेस उनको नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ना तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है और ना ही डेवलपर की जो एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर की हम इमेज की बात करते हैं हम लोग, कहीं पे वो लोग भी अनजस्टिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत वापस बेसिक पे चले गए। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट बहुत बूम पे है। अब इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि मार्केट बहुत बूम पे है, प्रॉपर्टियां 4 से 5 दिन में लॉन्चेस खत्म हो जा रही है। दूसरी पहलू ये भी है कि कोई भी अपार्टमेंट आज गुड़गांव में 3 से 4 करोड़ से नीचे है नहीं। आम जनता के पॉकेट से बाहर निकल गई है गुड़गांव। अब ये कितना स्पीड भागेगा और ये कहां तक पहुंचेगा? फिर हर की पॉकेट अलाउ नहीं कर पाएगी गुड़गांव में रहना। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने ना अभी लास्ट एक और मैंने पॉडकास्ट किया था, आप ही की तरह मेरे एक फ्रेंड थे जी, जिनके साथ में हम लोग बैठे थे, एंड सिमिलर क्वेश्चन ही आस्क्ड मी बट इन अ डिफरेंट वे। ही आस्क्ड मी, विशाल, somebody who does not have a 3 crore rupees budget, then where should he go? करेक्ट बात है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, सर टाइम सबका आएगा। हमने इस गुड़गांव मार्केट के अंदर वी हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस। कभी प्लॉट की डिमांड बहुत ज्यादा थी, कभी फ्लोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, कभी हाई राइज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, कभी अफोर्डेबल की डिमांड बहुत ज्यादा रही है। और जब जब जिस एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, डेवलपर का इंक्लिनेशन जो है वो ग्रेजुअली उस तरफ में भी गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिड सेगमेंट के लिए कोई डेवलपर आने वाले टाइम में प्लान नहीं करेगा, उनके लिए भी प्लानिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेवलपर कर रहा होगा, हम भी कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर ये जो एक तरीके का क्लाइंट है जो अपने आप को मिस आउट या ये सोचता है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल डेवलपर वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, पर हम लोग बस एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उस एक राइट लैंड पार्सल का हम लोग वेट कर रहे हैं, ताकि उनके लिए वो डेवलपमेंट हम लोग दे पाए जिस तरीके की वो उस ब्रैकेट में चाहते हैं। क्योंकि हर बंदा अपने, चाहे वो 1 करोड़ रुपीज पे कर रहा है, चाहे 5 करोड़ रुपीज पे कर रहा है, उनके लिए बस वो एक ही अपार्टमेंट होने वाला है और काफी सारी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो उस अपार्टमेंट में बिताने वाले हैं। मतलब मेरी क्लाइंट से बात चल रही थी, एक क्लाइंट जिसका फोन आया था, वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि ये बजट ऑफ 2.5 CR। वो मुझे कह रहे हैं कि उन्हें 10 चैनल से बात की और उन्होंने उनका फोन काट दिया ये बोल के कि सर आपके लिए गुड़गांव में कुछ नहीं है, 2.5 करोड़ रुपया जेब में रख के भी आप गुड़गांव में कुछ नहीं ले सकते हो। वो बंदा मेरे सामने मतलब बैठा था, भाई अभिषेक ये क्या हो गया? मतलब एक समय था कि 2.5 करोड़ में बहुत कुछ मिल रहा था, 2.5 करोड़ गुड़गांव में कुछ नहीं मिल पाता है। सर देखो, I can assure you one thing. We are in 2024. Before the end of 2025, you will see lot of development will happening for these people. Oh, I can assure you this. जिस तरीके का वैक्यूम और जिस तरीके का क्लाइंटेल उस एरिया में अब स्टैंड कर रहा है, आज नहीं तो कल, हम नहीं तो कोई और डेवलपर उनको कैटर करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर के आएगा। ठीक है, तो उनको जो भी आपके बायर हैं, माय सजेशन फॉर हिम टू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, समथिंग इज कमिंग फॉर हिम आल्सो। ठीक है, ठीक है। व्हाट एडवाइस वुड लाइक टू गिव जो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गुड़गांव में देख रहे हैं?
ये राइट टाइम है। ये राइट टाइम में ले लो। So if you have a budget, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए 4 करोड़ की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो 5 करोड़ की आज डेवलपमेंट हो रही है, आपको उस तरीके के फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर जो डेवलपमेंट 4 करोड़ रुपीस की है, तो आपको एमिनिटीज जो है अकॉर्डिंग टू 4 करोड़ रुपीस आपको मिल रही है, या अकॉर्डिंग टू 7 करोड़ आप उसमें भी एमिनिटीज ले पा रहे हैं। आपके अपार्टमेंट के साइजेस बड़े हो गए हैं। बात ये नहीं कि हम लोग प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए हैं। जहाँ 2012 के अंदर 3 बेडरूम शुड कम इन अराउंड 1700 to 1900 स्क्वायर फीट, नाउ 3 बेडरूम इज कमिंग विद 2400 to 2600 स्क्वायर फीट, क्योंकि जो लोगों की डिमांड है टुवर्ड्स दी बिगर साइजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू कीप चेंजिंग देयर अपार्टमेंट every 10 years to 15 years. They wants to buy one apartment today for their lifetime. Correct. यही mindset है. Maybe they'll change after 2 years also. They'll change after 20 years. It's not about that. The people will keep changing, right? They will keep upgrading their lifestyle also. That is there. But even today, when somebody is there as an end user, he wants to buy an apartment for his life. Okay. तो उनके लिए आज if they can buy for a bigger size, they're going for a bigger size. और जिस तरीके की amenities या जिस तरीके से फैमिली काफी डायनामिक हो गई है, जिस तरीके से मूवमेंट बाहर जाने लगी है हम लोगों की, लोगों को लगता है कि आज ही ये टाइम आ गया है, बाय इट टुडे, एंजॉय द लाइफ, ठीक है। और जब कभी और अपग्रेड करना होगा, मे बी नियर फ्यूचर 5 years 6 years डाउन द लाइन, देन दे विल अपग्रेड इट, क्योंकि आज अगर जो एक प्रोडक्ट उनको अच्छा मिल जाता है, दे आल्सो गेट अ वेरी गुड प्राइस आफ्टर 5 years। करेक्ट करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट अब लोगों का चल रहा है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट इन रेसिडेंशियल? सर एज ए एम्प्लॉय तो अच्छा ही रहना चाहिए। नहीं मतलब आपका क्या मानना है, कैसा ये किस तरफ जा रहा है ये गुड़गांव का रियल एस्टेट? सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। और सारे डेवलपर्स, चाहे हम लोग अपनी बात करें या हम किसी और डेवलपर की बात करें, अभी तक कोई ऐसा हम लोगों ने नेगेटिव किसी डेवलपर के लिए नहीं सुना है काफी लंबे टाइम से कि प्रोडक्ट रुक गया है। आफ्टर एवरा मेरे को लगता है कि एक बहुत पॉजिटिविटी आई है, एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हुआ है कि डेवलपर की तरफ, बायर का, कि ठीक है कई बार प्रोडक्ट थोड़े से लेट हो जाते हैं, पर सबको पता है डिलीवरीज आ रही हैं। और जिन लोगों ने 2017 में परचेज किया था, आज उनका प्राइस अगर जो हम लोग देखेंगे, इट हैज ऑलरेडी डबल्ड, मोर देन डबल ऑल्सो। तो वो एक पॉजिटिविटी बन रही है। तो जो इन्वेस्टर उस टाइम पे 2 करोड़ रुपीज में लगा हुआ था, नाउ ही हैज समथिंग फॉर 4 करोड़ रुपीज, तो आराम से उसको डिस्पोज करके इजीली कैन गो फॉर 6 करोड़ रुपीज अपार्टमेंट। तो वो इन्वेस्टर भी वापस बाहर निकल करके आ रहा है, वो भी अपने अप्रिशिएशन लेने के बाद में वो एक नई डेवलपमेंट में जा रहा है, ताकि और अपने प्राइस को और अप्रिशिएट करा सकें। क्योंकि जिस टाइम पे 2017 में ही बॉट 1 अपार्टमेंट, तो वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था। करेक्ट बात है। जो वो आज 2024 के अंदर परचेज करेगा, वो 2029 की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपार्टमेंट ले रहा है। तो ठीक है, उस टाइम के भी अपार्टमेंट अच्छे थे, आज के अपार्टमेंट भी अच्छे हैं। अपग्रेड होना और अपडेट होना इज ऑलवेज गुड। तो वो इन्वेस्टर जो 2017 वाला था, वो भी बाहर निकल के दोबारा री इन्वेस्ट करेगा, विच इज ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी अर्न अ डिसेंट मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द रियल एस्टेट। तो आई एम श्योर ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग। एप्रिसिएशन कहाँ तक जानी है, क्योंकि जो लॉन्चेस हो रही हैं इनके प्राइजेस ही 15,000, 18,000, 20,000 से स्टार्ट हो रहा है। एक प्रॉपर्टी कितनी अप्रिशिएट करेगी अब आगे चलकर? देखिए राइट प्रोडक्ट के लिए तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई प्राइसिंग है। अगर जो आप एक अच्छी डेवलपमेंट लेकर के आ सकते हैं, और जो जिस तरीके के सेगमेंट में आप अपने आप को प्लेस करना चाह रहे हैं, उस सेगमेंट से अगर जो आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं विद द प्रोडक्ट एंड विद द नॉलेज, विद द माइंडसेट, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस को आप किसी भी लेवल पे प्लेस करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। इश्यूज वहां पर आते हैं जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं और डेवलपमेंट आप उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हो। करेक्ट बात है। वहां पे ना तो इन्वेस्टर आगे जाके अर्न करता है, ना ही वहां पे एंड यूजर एक अच्छी लाइफ ले पाता है। ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू एडवाइज अस, एडवाइज व्यूअर्स? देखिए मैं बस ये चाहूँगा, बहुत सारे हम लोग बाहर से मिलते हैं, बहुत सारे एंड यूजर्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं। मेरा बस सजेशन ये है कि ये टाइम वो नहीं है जहाँ पे आप बिल्कुल डेडलाइंस के साथ में आप आगे बढ़ो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बायर की तरफ से चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर की तरफ से चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों की तरफ से चाहिए। तो इससे जो डिसीजन आएगा, ठीक है, वो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन होगा,
जिसमें ना आपको आगे रिग्रेट करना पड़ेगा, ना बायर को रिग्रेट करना पड़ेगा, ना डेवलपर को रिग्रेट करना पड़ेगा। बजाय हमें नेगोशिएशन के लिए प्राइसिंग के ऊपर हमें नेगोशिएशन करना चाहिए जो राइट चीजें। हमें बात करनी चाहिए, अपने बारे में खुल के बताना चाहिए कि हम लोगों का ये माइंडसेट है और इस माइंडसेट की वजह से हम आपके डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एज ए सेल्स पर्सन फ्रॉम द कंपनी साइड, आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। I should understand the requirement of the buyer or investor, and I should actually suggest them कि ये product will meet your desired criteria, or this product won't meet it। क्योंकि आज मैं सिर्फ एक सेल करने के लिए if I am saying yes to every question, तो आने वाले टाइम में ना तो वो मेरी पोजीशन के साथ में अच्छा जाएगा, ना मेरे कैरेक्टर को डेवलप करेगा, और अल्टीमेटली जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपर, ठीक है, गंगा रियलिटी में अपनी बात कर रहा हूँ इसमें कि गंगा रियलिटी के आने वाले टाइम में एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपर की तरह बाहर निकलेगा, तो वो हम नहीं बना पाएंगे वो इमेज। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि जहां आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने, सेम टाइम पे मेरे को अपनी पोजीशन पे मेरे को मेरी टीम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को हमारे से सुनना है। बिल्कुल सही बात है। आपका हम लोग बहुत बहुत आभार हमेशा इसलिए भी व्यक्त करते रहते हैं क्योंकि उनसे मिलवाने का जो प्रोसेस है वो आपके बिना कभी कंप्लीट होता नहीं है। पर सेम टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी टीम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, उनके आंसर्स को देना चाहिए, ठीक है, उनको अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहां पे क्लाइंट अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सके और वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो पाए, कस्टमर आपसे ट्रस्ट भी कर पाए आपको। सर देखिए, बेचना तो बहुत सारी चीजें बेची जा सकती है, ठीक है ना, पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे बंदा अपने लिए, जो क्लाइंट है, अपना एंड यूजर है, कैन टेक अ राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ, करेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, मैं लास्ट 17 ईयर से बस यही कोशिश कर रहा हूँ, अपने जितने भी बायर्स हैं या जो भी मेरे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, कि मैं उनको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दूँ। इफ दे लाइक इट or if they feel this product is going to give them some advantage as an end user or as an investment, so they should invest. If they feel it is not going to gel with the lifestyle or with the investment requirement, they should say no to me. और मेरे लिए तो दोनों ही आंसर बढ़िया है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि लाइफ में उनको भी आगे बढ़ना है, लाइफ में हमें भी आगे बढ़ना है। Okay, Vishal ji, thank you so much for sharing your valuable content. Thank you, thank you so much. Thank you, Abhishek. Thank you. Really nice meeting you. Thank you so much. I know आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।